آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کوئنز کے بارے میں جنہوں نے مشکل حالات میں پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنی سلطنت کا اقتدار سنبھالا اور اپنی سلطنت کو تباہ ہونے سے بچا لیا، اور ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ وہ کوئنز کہاں کی رہنے والی تھیں اور کن کن ممالک پر انہوں نے حکمرانی کی۔ اگر آپ ان سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائی یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ کیا عورت کو دنیا پر حکمرانی کرنی چاہیے؟ جب یہ سوال قدیم مصر کی کوئین سے پوچھا گیا تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ مصر کی ماہر کارا کونی نے پایا کہ قدیم مصر نے مصیبت کے وقت قدیم مصر پر حکمرانی اور تحفظ کے لیے خواتین کی قیادت کی طرف رجوع کیا۔ ماضی آج کی خواتین کے لیے کیا سبق دیتا ہے؟ ان دنوں خبریں پڑھنا اکثر افسردہ اور اضطراب پیدا کرنے والا کام ہے۔ بڑے پیمانے پر فائرنگ، پائپ بم، قتل و غارت اور اس سب پر موسمیاتی تبدیلی باعث کا شکار ہے۔ ان جدید انسانی بدنیتی کے ماخذ عام طور پر ایک ہی ہیں: مادرما جو معاشی، سیاسی اور مذہبی طاقت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ یہ سوال پیدا کرتا ہے، کیا عورتیں مردوں سے مختلف طریقے سے حکومت کر سکتی ہیں؟ اگر تاریخ کو اشارہ کرتی ہے تو جواب ہاں میں ہے۔ ماضی سے سبق سیکھیں تو قدیم مصری یقینی طور پر خواتین حکمرانوں کی حکمت پر یقین رکھتے تھے۔ در حقیقت جب کوئی سیاسی بحران تھا، قدیم مصریوں نے اقتدار کے خلاف عبور کرنے کے لیے بار بار ایک عورت کا انتخاب کیا، خاص طور پر اس لیے کہ وہ سب سے کم خطرناک آپشن تھی۔ خواتین کو اقتدار میں رکھنا اکثر غیر یقینی کے دور میں پادرانہ نظام کے لیے بہترین تحفظ تھا۔ اس وقت کی دوسری ریاستوں کے مقابلے مصر کی بادشاہت مختلف تھی۔ صحراؤں اور سمندر کی قدرتی حدودوں نے اسے مسلسل حملوں، جنگجوؤں اور جہریت سے محفوظ رکھا، جو میزوپوٹامیہ، شام، فارس، یونان یا روم نے برداشت کیا۔ ان سرزمینوں میں اگر کوئی چھوٹا بچہ تخت پر بیٹھتا ہے تو یہ اس سے چھین لینے کے لیے فوجی مقابلے کی دعوت ہوگی، لیکن مصر میں جہاں خود مختار چاہے کتنے ہی چھوٹے ہوں دیوتا بادشاہوں کے طور پر عزت دی جاتی تھی۔ خواتین ان کی حفاظت کرتی تھیں، بچوں کو اقتدار کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر دیکھنے کے بجائے مائیں، خالہ، بہنیں طاقت کے طور پر مرکز میں نوجوانوں کا دفاع کرتیں۔ اس استحکام کا رجحان مصر کی تاریخ میں بارہا استعمال کیا گیا۔ مصر کے پہلے فرعون خاندان کی خاتون، جس نے 3000 قبل مسیح سے 2890 قبل مسیح تک یعنی 110 سال تک مصر پر حکومت کی۔ جب اس کے شوہر کنگ ڈیجٹ کی موت ہوئی، ملکہ مرینیت نے ایک چچا کو ریجنٹ کے طور پر کام کرنے اور اپنے بھتیجے کو ہیرا پھیری کرنے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے جوان بیٹے کی طرف سے اقتدار میں قدم رکھا۔ مرینیت پہلی دستاویزی ملکہ ریجنٹ تھی جس نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور مصر میں استحکام کا بیمہ کیا۔ جب نسل کشی یا دیگر عوامل کا مطلب یہ تھا کہ تخت سنبھالنے کے لیے کوئی ولی عہد بالکل نہیں تھا، مردہ بادشاہ کی بیوی نیفروسوبک نے حکومت کی طرف قدم بڑھایا اور مصر کی رہنمائی کی۔ ایک اور خاندان حکومت کرنے کے لیے تیار تھا، اور نیفروسوبک نے 1885 قبل مسیح سے لے کر 1773 قبل مسیح تک مصر پر حکمرانی کی۔ ترقی اور خوشحالی کے دور میں ایک نئی ٹرائل بلز نے مصر کی قیادت کی۔ جب بادشاہ صرف 3 سال تخت پر بیٹھنے کے بعد فوت ہوا تو ایک چھوٹا بچہ فرعون بن گیا۔ لڑکے کی خالہ نے خلاف ورزی میں قدم رکھا اور ہیتشیپسٹ کا دور شروع ہوا۔ اس نے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک مصر کی قیادت کی، جو کسی بھی خاتون بادشاہ کی سب سے زیادہ طویل مدت تھی، اور اس نے اس سے بہتر بادشاہی چھوڑی جو اس سے ملی۔ اور بعد میں جب 18ویں خاندان میں بادشاہ اخیناتین نے اپنے لوگوں پر مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دی تو اس نے اپنی بیوی
नेफरतेती को अपना शरीक हुक्मरान बनाया। वो इक़्तिदार पर फायज रहने का सबसे महफूज ऑप्शन रहा होगा, और ये वही थी जिसे उसकी मौत के बाद उसकी गंदगी को साफ़ करना था। इसके साथ 19वां ख़ानदान, जो 1295 कबल मसीह से 1186 कबल मसीह तक हुक्मरानी में रहा, एक और ख़तून मलका तोसरियत को एक लड़के के लिए रेजेंट के तौर पर रखा गया था, और यहाँ तक कि उसकी मौत के बाद बादशाह के तौर पर हुकूमत करने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन वो इस जंगजू के लिए कोई मुकाबला नहीं थी जिसने उसे हटा दिया था। इसे इस्तिस्ना के साथ इक़्तिदार से हटाकर अपने लिए ताज छीन लिया। अब चलते हैं तारीख़ की उन मलकाओं की तरफ जिन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की। इसके साथ ही बात करेंगे मिस्र की मशहूर और ताकतवर मलका क्लोपेत्रा के बारे में कि क्लोपेत्रा का ये स्याह बेसाल्ट मुजस्मा बतरीमा ख़ानदान के आखिरी फ़िरौन की चंद जिंदा बच जाने वाली तस्वीरों में से एक है, जिसने अपने बहन भाइयों को बगैर किसी इल्ज़ाम के तख्त संभालने के लिए ख़त्म कर दिया। सिर्फ अपनी तमाम तरतवानाइयाँ अपने बहुत से बच्चों के लिए एक ख़ानदान की तश्कील में लगा थी। यहाँ तक कि रोमन रहनुमाओं के इस बहकाने वाले ने इस वक्त के अपने साथी मार्क एंटोनी से मुख्तलिफ अंदाज में हुकूमत की। जब वो पार्थिया में हमला आवर था, वो मिस्र में रही और सुकून पैदा करने की कोशिश की। जब वो बेवकूफ़ाना तौर पर एक्टियम के जंग में मसरूफ़ था, उसने दीवार पर लिखी तहरीर देखी और अपने बेड़े के साथ मिस्र वापस भाग गई, जहाँ वो कुछ अच्छा कर सकती थी। तारीख़ बताती है कि मिस्री जानते थे कि औरतें मर्दों से मुख्तलिफ हुकूमत करती हैं, और इस तरह उन्होंने पादराना निज़ाम की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया। स्टॉप गैप्स प्लेस होल्डर्स के तौर पर काम किया, जब तक कि अगला आदमी समाजी एहराम पर सबसे ऊपर की जगह पर ना हो जाए। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनके पास कितनी ही ताकत थी, अगरचे इनमें से अक्सर को बादशाह से कम नहीं कहा जा सकता था। कदीम मिस्र की ये मजबूत ख़वातीन इस काबिल नहीं थीं कि वो पादराना एजेंडे से आगे निकल सकें और ख़ुद निज़ाम को बदल सकें। जब उनका दौर ख़त्म हुआ तो मर्दाना मिस्री ताकत का ढांचा बरकरार रहा। हज़ारों सालों से ख़वातीन ने दूर दराज देहातों में हुकूमत की है और बड़ी सल्तनतों पर हुकूमत की है। यहाँ एक मंगोलियन शहज़ादी 1920 की दहाई में फुल कोट ड्रेस में पोर्ट्रेट के लिए पोज करती है। ये नेपाल की मलका की तस्वीर है कि जब नेपाल की मलका के इर्द गिर्द इंतज़ार में ख़वातीन मुमकिना तौर पर 1910 की दहाई में तस्वीर ये ली गई थी। यह तस्वीर चीन की मलका की है, जब चीन में लोगो झील के वस्त में वाक़या एक जजीरे नैरोफोक की मलका 1931 में अपने 2 बच्चों के साथ थी। ये तस्वीर मिली मुल्क की मलका की है, जब 1930 की दहाई में मिली की अलग थलग बादशाही नीम खुद मुख्तार थी और इस पर बादशाहों की हुकूमत थी, जहाँ एक शहज़ादी और उसकी ख़वातीन नेशनल जियोग्राफिक के एक्सप्लोरर जोसेफ रॉक के इंतज़ार में पोज करती हैं। ये तस्वीर मेडागास्कर की मलका बनाओ की है कि जब मलका बनाओ 1913 में अपने दरबार के सामने खड़ी हैं। बाद में फ्रांसीसी नौआबादियात ने इससे उनका इक़्तिदार छीन लिया। यह तस्वीर लद्दाख की मलका की है कि जब 1951 में लद्दाख हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया था। ये मोनाको की शहज़ादी की तस्वीर है कि किस तरह मोनाको की शहज़ादी अदाकारा से मलका बनी। 20वीं सदी का सबसे मशहूर शाही जोड़ा प्रिंस चार्ल्स और लेडी डियाना हांगकांग के दौरे पर। फराह पहलवी ईरान की अब जलावतन मलका तेहरान के गुलिस्तान महल में अपनी ताज पोशी के मौके पर उनकी तस्वीर ली गई। ह्यू की एक शहज़ादी जो अब वस्ती वियतनाम में है, लेकिन जब ये तस्वीर 1930 की दहाई में ली गई थी तो फ्रांसीसी इंडो चाइना क्या था। मलका फराह पहलवी 1975 में इनकलाब के दौरान ईरान से फरार होने से 4 साल पहले वो अब अमेरिका और फ्रांस में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही है।
टोंगा की मलका सलूटे टोपो थर्ड ने 1965 में अपनी मौत तक तकरीबन 48 साल तक टोंगा जजीरे पर हुकूमत की। इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ दोम इस वक्त सबसे तवील हुक्मरानी करने वाली बादशाह मलका हैं। इल्मी साइंसदान जानते हैं कि ख़वातीन का दिमाग मर्दों से मुख्तलिफ होता है। समाजी साइंसदानों ने पाया है कि मर्द पर तशद्दुद जुराइम के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, बशमूल इस्मतदारी और कत्लेआम। मजमूई तौर पर ख़वातीन में इज्तिमाई कत्ल का इम्कान कम होता है, जंग शुरू करने के लिए कम माइल होते हैं, इनके साथ राब्ते में रहने और अपने जज्बात के इजहार करने का ज़्यादा इम्कान होता है और फैसला कुन होने की बजाय बारीकियों में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। शायद ये खसूसियात वही थी जो कदीम मिस्र ने बुरहान के वक्त तलाश की थी। ये मलका माजी से पुकारती हैं, हमें चैलेंज करती हैं कि हम ख़वातीन को सियासी इक़्तिदार में जगह दें, ना कि पादराना ख़ानदान की नुमाइंदा के तौर पर, बल्कि अपने बापों की जारियत को बर्दाश्त करने की बजाय अपनी समाजी रवाबत और जज्बाती हम आहंगी के मुख्तलिफ एजेंडों की खिदमत करने वाली ख़वातीन के तौर पर भाई और बेटे। अगर एक तवील अरसा पहले ख़वातीन ने वाकई दुनिया पर हुक्मरानी की थी तो वो हकूक़ नस्वा के बगैर, बहन भाइयों के बगैर, अपने एजेंडे के बगैर, इक़्तिदार पर अपनी तवील मुद्दत गिरफ्त के बगैर भी ऐसा करने के काबिल थी। अब वक्त आ गया है कि तारीख़ पर नज़र डालें, कदीम मिस्र की इन ताकतवर ख़वातीन की तरफ जो बार बार अपने लोगों की निजात थी। क्या होगा अगर आज इन्हें अपने जज्बात की पूरी ताकत के साथ हुक्मरानी करने की इजाज़त दी जाए? अपने जज्बात का इस्तेमाल करते हुए जो ख़वातीन के बारे में सबसे ज़्यादा शैतानी खसलत है, उनके उतार चढ़ाव, उनकी उदासी और खुशी, उनकी गैर महज़ब फितरत, क्या इस खसलत को दूसरों के साथ जुड़ने, समझौता करने, टेरगर से उंगली हटाने, एक अहम हल तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जज्बातियत का यही अंसर 21वीं सदी की आजमाइशों और फितनों से इंसानियत की रहनुमाई कर सकता है। कराकोनी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स में मिस्रियात के प्रोफेसर हैं। कदीम दुनिया में समाजी तारीख़, सनफ़ी मुतालिया और मईशत में महारत हासिल करने वाले वो जब ख़वातीन ने दुनिया पर हुक्मरानी की। कराकोनी ने 2 किताबें लिखीं, 2014 में कदीम मिस्र में हैशस्पोर्ट का रूज और दूसरी 2018 में 6 क्वींस ऑफ मिस्र। ये किताबें कदीम मिस्र पर लिखी जाने वाले किताबों में सबसे बेहतरीन किताबों में से एक हैं। अगर आप भी इस तरह की मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हिस्ट्रोमेंट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।